રાજકોટની અગ્રણી ગિરિરાજ હોસ્પિટલ દ્વારા શહેરમાં પ્રથમવાર AWR એન્ડ ઓબેસિટી મીટ 2026નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વૈજ્ઞાનિક કોન્ફરન્સમાં ભારત અને વિદેશના ખ્યાતનામ સર્જન્સ એક મંચ પર એકત્ર થયા હતા, જેમાં કોમ્પ્લેક્સ હર્નિયા, લેપ્રોસ્કોપિક અને બેરિયાટ્રિક સર્જરીની નવીનતમ ટેકનોલોજી વિશે ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. લાઇવ સર્જરી અને ઇન્ટરેક્ટિવ સત્રો દ્વારા નિષ્ણાતોએ આધુનિક સર્જિકલ પદ્ધતિઓ અને સંશોધન આધારિત સારવાર અંગે મૂલ્યવાન માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું, જે તબીબી ક્ષેત્ર માટે સીમાચિહ્નરૂપ બની રહેશે. નમસ્કાર, ડૉક્ટર મયંક ઠક્કર છું, મેડિકલ ડાયરેક્ટર શ્રી ગિરિરાજ હોસ્પિટલ. આજે આપણે AWRSC કે જે સર્જનોનું એસોસિએશન છે ઇન્ડિયા લેવલનું, એબ્ડોમિનલ વોલ રિકન્સ્ટ્રક્શનનું, અને શ્રી ગિરિરાજ હોસ્પિટલ સાથે મળી અને એડવાન્સમેન્ટનો પ્રોગ્રામ કર્યો છે કે જ્યાં દુનિયાની લેટેસ્ટ એડવાન્સમેન્ટ સર્જરીના લેવલે એબ્ડોમિનલ વોલ રિકન્સ્ટ્રક્શન, આપણે હર્નિયા જે માનીએ છીએ ને, સારણગાંઠ હર્નિયા, એની લેટેસ્ટ સર્જરીઓ શું આવી ગઈ દુનિયામાં અને એ કઈ રીતને પરફોર્મ કરવાનું છે એનું આજે એજ્યુકેશન છે. અને કાલે એ સર્જરીઓ લાઈવ પરફોર્મ કરીને બતાવવાના છીએ. દુનિયાના 3 કન્ટ્રી USA, ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રાઝિલ અને સ્કોટલેન્ડ, આના સર્જનો આ થિયરી શીખવાડી રહ્યા છે લાઈવ ત્યાંથી. અને કાલે ઇન્ડિયાના નેશનલ ફેકલ્ટીઝ છે બધા કહી શકાય, દિલ્હીના, હૈદરાબાદના, બોમ્બેના, ચેન્નઈના, ઇન્દોરના, આ બધા સર્જનો કાલે સર્જરી અહીંયા લાઈવ પરફોર્મ કરશે ગિરિરાજ હોસ્પિટલ ખાતે. 7 પેશન્ટો છે જેની ઉપર આ સર્જરીઓ પરફોર્મ થશે અને એ સર્જરીમાં શું એડવાન્સમેન્ટ આવ્યું એનું સૌરાષ્ટ્રના 200 ડૉક્ટરોને બતાવવામાં આવશે. અત્યારે બી 200 ડૉક્ટરો અહીંયા હાજર છે કે જે અત્યારે થિયરી ભણી રહ્યા છે અને કાલે લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોશે અને સર્જરીમાં ન્યૂ એડવાન્સમેન્ટ જે આવ્યું છે એ શીખશે. અત્યારે આ જે કોન્ફરન્સ છે એમાં એ શીખવાડવા માટે બોલાવ્યા છે કે આજે જે સિનિયર ડૉક્ટરો છે એને નવું શું એડવાન્સમેન્ટ કર્યું. તો અત્યારે અહીંયા જે જુનિયર ડૉક્ટરો છે એ અત્યારથી શીખી રહ્યા છે કે હવે અમારે કયા તરફ ટેકનિક યુઝ કરવાની છે, કેવું શું કરવાનું છે, એ શીખી રહ્યા છે. એટલે બેઝિકલી આનું પ્લાન જ એવો છે કે નવું એડવાન્સમેન્ટ અત્યારથી જો એ લોકોને શીખવા મળે યંગ ડૉક્ટરોને, તો આગળ જતાં પેશન્ટોને સારું રિઝલ્ટ આપી શકે અને પેશન્ટોને અમદાવાદ, બોમ્બે, हैदराबाद जो ट्रैवल करવું પડે છે નવી એડવાન્સ સર્જરીઓ માટે જરૂર કરવું ना पड़े. मेरा नाम डॉक्टर शरद शर्मा, मैं एक सर्जन हूँ, मुंबई से आया हूँ और आज यहाँ पे गिरिराज हॉस्पिटल और AWR सर्जन्स की तरफ से हर्निया पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस है जो नए पीढ़ी के जो सर्जन्स हैं उनके लिए सीखने के लिए, क्योंकि हर्निया में बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट हो रहा है. पिछले 10 साल से बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, और राजकोट जैसी जगह में इसका जो एजुकेशन मिल रहा है, जो हम नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल सर्जन्स जो हैं उनका लेक्चर चल रहा है और सीनियर सर्जन्स भी आकर बोल रहे हैं, उससे जो मैसेज मिल रहा है, उससे जो नॉलेज मिल रहा है, ये नए जो पीढ़ी के सर्जन्स हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा. सो AI जो है ये टीचिंग मॉड्यूल में फ़र्क पड़ता है, इससे जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई है उसमें बेनिफिट मिलता है और ये जो रोबोटिक डेवलपमेंट है उससे अल्टीमेटली सर्जन्स और पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा. तो ये एक डेवलपिंग साइंस है फ़िलहाल. सबसे ज़रूरी है स्किल. अपनी जो हुनर है, अपना जो हुनर है, स्किल है, ये इम्प्रूव करो और ये एक कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ों में होता है. दूसरा, पेशेंट का व्यवहार, कि हमारे को जो सीखते हैं उससे हम पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सबसे अच्छा आज के तारीख में साइंस के हिसाब से जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो कैसे दे सकते हैं, ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है. हेलो, आई एम डॉक्टर सदाशिव चौधरी. आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई. मैं मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल से एक लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे गिरिराज हॉस्पिटल और AWR सर्जन्स कम्युनिटी की तरफ से ये हर्निया और ओबेसिटी रिलेटेड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है. तो यहाँ पे एक फैकल्टी के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ. सो एक बहुत अच्छा नया प्रावधान इन्होंने किया है. बेसिकली इट्स अ वेरी गुड कॉन्फ्रेंस. यहाँ पे एक जो हम लोग बोलते हैं कि हर्निया रिपेयर के लिए A to Z क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके बारे में एक नए पीढ़ी को और सर्जन्स को जो पेरिफेरी में शायद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सीडिंग है. ओके, एक रोप के उनको एक अनुमान हो रहा है कि बाहर के वर्ल्ड में क्या चल रहा है. तो ये कॉन्फ्रेंस से ये बहुत सीखने वाला है और नए यंग बडिंग सर्जन्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. रोबोटिक सर्जरी ये सर्जरी करने का एक ज़रिया है, ओके, जिसको हम लोग मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं. तो एक
रोबोटिक सर्जरी एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। जैसे एक लैप्रोस्कोपी हो गया जिसको हम लोग दूरबीन की सर्जरी बोलते हैं, वैसे ही रोबोटिक सर्जरी एक दूरबीन की सर्जरी है, जहाँ पे रोबोटिक आर्म्स पेशेंट के बॉडी में जाता है और वो रोबोट को सर्जन कंट्रोल करता है। ओके, तो इस रोबोटिक सर्जरी में मिलने वाला प्रिसीजन जो होता है अपने नॉर्मल ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कई ज़्यादा होता है, और पेन या इंसिजन जो होता है ये अपने नॉर्मल सर्जरी से कम होता है। ओके, सबसे पहली बात तो कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि नए आने वाले हर एक स्किल्स, नॉलेज, पेशेंट का बिहेवियर, ये सब चीज़ों को आज अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, अभी आजकल का ट्रीटमेंट मीन्स हम लोग सर्जरी किया और ख़त्म किया ऐसे नहीं होता है। राइट फ्रॉम पेशेंट्स इन्वेस्टिगेशंस, उनका इंश्योरेंस, उनका पेइंग, और जो पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है और अत्याधुनिक है और जो पेशेंट के लिए सबसे लंबे समय के लिए जो सबसे अच्छा रहेगा, वो चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो हर एक दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है और वो नए रास्ते बता रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है बदलती रहने वाली है, लेकिन वक्त के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा और हमें अपना नॉलेज हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग एक समाज के लिए एक अच्छे तरीके से उनकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे।